studying class 6 from MCA Junior High School, Jalalpur, Amroha. Today my topic is education. Education is a very important thing in our life. It makes independent and solving problems in our life. Education is a very important tool in our life. It gives us knowledge. Education plays a very important role in our life. मैं शिक्षा के ऊपर आपको एक शायरी सुनाने चाहती हूँ। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने का मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देंगे। That's all about me. Thank you. और आदिति कंट्री के बारे में आपको बताएगी, ध्यान से सुनिएगा। Good morning to all of you. My name is Aditi Singh. I am pursuing class 6 from MCA Public Junior High School, Jalalpur, Dhana, Amroha. My topic is country. We live in India. It is our country. Its capital is New Delhi. Its population of over 140 crore. It is a very big country. It has many rivers and it has many cities. India is a great country. I am proud of you, my country. मैं एक आपको शायरी सुनाना चाहती हूँ देश के ऊपर। न पूछो जमाने से क्या मेरी कहानी है, न पूछो जमाने से क्या मेरी कहानी है, बस हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। Hello. Now you have heard the two girls. One named is Deepa and second is Aditi. And both are speaking about education and country. She speaks well in English, but one thing I am saying to you, Aksha and Asvi are not speaking because there is the reason is that one is suffering from fever and others are not reading about her topic properly. But the topic is Colonel Sophia Qureshi and Dr. APJ Abdul Kalam and Wing Commander Vyomika Singh. Vyomika Singh नाम था? Vyomika Singh. हाँ, Vyomika Singh. Both are posted in Indian Army as a reputed position, who have raised the pride of our country and the head of our country, and destroyed all the terrorist areas. But I am breaking my promise that I did to Deepa. And I told you, Deepa had passed the exam of Navodaya Vidyalaya, or she is going to Navodaya Vidyalaya for admission after 1 week. So my best wishes for you, beta. Congratulations, and एक बार clapping हो जाए. Everybody clapping in honor. And there are mostly intelligent students in reading here. The name is as follows: Disha, Aditi, Vyomika, Aksha, Ashvi, Aditi, Anubhav, Niharika, Riya,
Shaurya. And I have forgotten the name, so I will apologize you, and I will not be able to everybody's name. And one thing about, I will say, the lady teacher staff are teaching here, who are teaching here, all are very intelligent. And one thing I will say about her, is their writing skills is very efficient and very good. So they deserve some respect and they deserve for clapping. Every students will clap in honor of the lady teacher staff because of their teaching skills and intelligence. Clapping. कम से कम इतनी संतुष्टि होती है डॉक्टर से अच्छे निकलते हैं। राइटिंग इज बेटर देन डॉक्टर्स। और मैं एक इसका क्रेडिट गोज टू टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड ऑनर ऑफ दिस कॉलेज। ही इज रनिंग वेल इन कॉलेज विद एंटायर स्टाफ। एंड कुछ एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ आपको। एक जंगल में कौवा रहता था, शायद कहानी आपने सुनी होगी। एक जंगल में कौवा रहता था, तो कौवा एक महाराज जी के पास गया और बोला, महाराज जी मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा रंग काला है, लोग अगर मैं किसी की छत पे आता हूँ, बैठता हूँ, काँव काँव करता हूँ तो लोग मुझे भगा देते हैं। पूरा रंग काला है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ, आप मुझे ऐसा कीजिए, हंस बना दीजिए। तो महाराज जी बोलते हैं चलो बना तो देंगे, पहले ऐसा कीजिए हंस से मिल आइए। हंस से मिल के आइए। बोले ठीक है मिल के आता हूँ। हंस से बोले, कौवा पहुँचता हंस के पास, भाई हंस महाराज आप तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। बोले खास अच्छा जीवन जी रहा हूँ, मैं तो खुद दुखी हूँ। दिन भर पानी में तैरना, बाहर जाना तो शिकारी का डर लगता है कि शिकारी हमको मार ना दे, मैं तो बहुत दुखी हूँ। बच्चों का भरोसा नहीं रहता, ये भी कोई जिंदगी है? और जिंदगी तो तुम जी रहे हो। बोले तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हाँ बोले नहीं है। तो बोले महाराज हमें तोता बना दो। बोले अच्छा ऐसा करो एक बार तोते से मिलाओ। तो दोनों मिलकर तोते के पास जाते हैं। तोता बोलता है अरे यार ये भी कोई जिंदगी है, पिंजरे में बंद रहता हूँ, लोग मुझे मिट्टू मिट्टू कहते हैं, स्वतंत्रता का मुझे कोई पता ही नहीं, जंगल में उड़ने वाला प्राणी हूँ, विचरने वाला प्राणी हूँ, मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तुम जी रहे हो। बोले तुम भी खुश नहीं हो? बोले नहीं मैं भी खुश नहीं हूँ। तो बोले क्या बनाए? बोले मोर बना दो। तीनों जाते हैं। बोला अच्छा एक काम करो मोर के पास आओ। तीनों मिलकर पहुंचते हैं मोर के पास। जब मोर के पास पहुंचते हैं, अरे यार मोर को तो बहुत पसंद करते हैं, उनके पंखों को सब पसंद करते हैं, तुम तो यार बहुत मस्त जीवन जी रहे हो। अरे यार ये खास जीवन जी रहा हूँ यार, जीवन तो तुम जी रहे हो। मैं नाचता हूँ तो मेरे पैर बहुत काले हैं और अभद्र दिखते हैं, गंदे दिखते हैं, और मेरे पंखों का पता नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं। कोई शिकारी आता है मारता है और मेरे पंखों को बाजार में भेज देता है, ये भी कोई जिंदगी है? और जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छे तुम जी रहे हो। कोई महाराज? बोले कैसे? तुम्हें किससे डर? बोले नहीं। कोई तुम्हें मारता है? बोले नहीं। कोई तुम्हें परेशान करता है? बोले नहीं। बोले कभी सुना कौवा बिरयानी? बोले नहीं। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सुना? कौवा बिरयानी सुना है? बोले नहीं सुना। तो तू तो मस्त जीवन जी रहा है यार, कुछ परेशान है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, आप स्वयं में सर्वश्रेष्ठ हैं और आप जैसा है स्वयं के अनुसार ही बनने की कोशिश करें, अपना टैलेंट निखारने की कोशिश करें। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी में 9 साल रहा मैं दिल्ली के अंदर। एक चीज़ देखी, जो लोग आपके सामने बोल नहीं पाते या आपसे कंपेयर नहीं कर पाते, आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। हुआ क्या, एक बार BS3 से बॉयज हॉस्टल 1 में ट्रांसफर हो गया, वहाँ की व्यवस्था तो सुधारी। एक बार अपने कमरे से बाहर निकला, देखा तो 100-150 मोर के पंख मेरे रूम के आगे पड़े हुए थे। जस्ट लाइक टोटका करते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं किया, मैं आ गया बाहर, समझे 100-150 अच्छा दिमाग में चिंता तो हो ही जाती है यार, 100-150 पंख डाले हुए हैं, बड़ा अजीब सा है। उसके बाद हुआ क्या, वो दिमाग में कुछ चीज छवि बना ली मैंने। अब मैं टीवी रूम में रात को 12 बजे 1 बजे कुछ टीवी देखने जाता हूँ, अगर फूल का कोई दृश्य आए
तो फूल साफ साफ उस फूल की खुशबू मुझे आसपास महसूस होती है। अब आप सोच रहे हो कि ज़्यादा फेंक रहा हूँ मैं, लेकिन रियलिटी यही है कि मैं अपनी आत्मकथा लिख रहा हूँ, लगभग सन 2014 से लिख रहा हूँ। देखते हैं जब तक जिंदगी है तब तक आत्मकथा चलेगी, और जब लगेगा कि पूरी हो गई तो कोशिश करेंगे पब्लिश के लिए दी जाए। तो उसके बाद यदि मैं कहीं ऑफिस के लिए जाता हूँ तो आसपास से कई बार बदबू सी महसूस होती थी, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी फॉलो कर रही है। लेकिन कर तो कुछ नहीं पाई, लेकिन परेशान करने की कोशिश मुझे होती थी। उस दिनों में ये रहा कि मैं एक रूम से दूसरे रूम तक, तीसरे रूम, चौथे रूम से पांचवें रूम को बदलता रहता था हफ्ते में। वहाँ एक सरल सुपरवाइजर थे, बोले सर आप रूम चेंज करते हो, क्या दिक्कत है? बस सर मेरा मन करता है, मैं करता रहता हूँ ऐसे। तो वो व्यक्ति फिर मेरे रूम में भी आता है। मैं अचानक सुबह को सोया हुआ था, उसने कम से कम, मैं फूड सप्लीमेंट करता था खाने के लिए, खाना कम खाता था, फूड सप्लीमेंट ज़्यादा रखता था। उसने मेरे खाने के आइटम में कुछ मिलाने की कोशिश की। मैं सोया हुआ था और मैंने देखा कि कुछ मिला रहा है। अचानक आँख खुली, देखा कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा है। वो आइटम मैंने निकाल के बाहर फेंक दिए। तब मैंने एक चीज़ महसूस की कि आप कहीं भी रहें, कहीं भी पढ़ाएं, कोई कितना ही आपका सगा हो, अच्छा हो, भरोसे के साथ साथ अपना दिमाग हमेशा खुला रखें। भरोसा तो सब पे करें, लेकिन दिमाग अपना खुला रखें। मैं एक प्रसंग और सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल सच है। मैं उन दोनों, बस 2 मिनट रुकूंगा सर, मैं उन दोनों रामायण बहुत देखा करता था हॉस्टल के अंदर। जब जब मैं टाइम मिलता मैं रामायण देखने की कोशिश करता था। जब रामायण देखा तो एक विचार आया कि अगर रामायण वास्तव में सच है और ये घटना सत्य है, तो ऐसी 2 महान शक्तियों में युद्ध नहीं होना चाहिए था, इतना विनाश नहीं होना चाहिए था। बार बार देखता था तो एक दिन राम और रावण मेरे सपने में आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया, जवाब मिल गया। मैं बार बार इसमें सोचता था, 2 बातों से जवाब मिल गया। हालांकि ये मैंने अपनी कहीं आत्मकथा में दर्ज नहीं किया है, लेकिन कई बार बच्चे उसको, कोई भी व्यक्ति सच नहीं मानता, लेकिन वास्तविकता रियलिटी यही है। तो आपका, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ें आपको सच लगने जाती हैं। और कुछ चीज़ें समय के अनुसार जब हम सोचते हैं, समझते हैं, तो सच भी होती हैं। तो कहने का मतलब यह है, अपने विश्वास की शक्ति को जागृत करें। लास्ट में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी स्पीच को एंड करूंगा। हम जिंदगी मुश्किलों में जीना जानते हैं, आप मुश्किलों में जिंदगी को जीना नहीं जानते। हम में और आप में इतना ही फर्क है कि आप जिंदगी में दोस्त और हम दोस्तों में जिंदगी ढूंढते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको ये हमारा प्रसंग पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।